So, hello students, welcome back to the module, and let's begin with a quote that time is not the main thing. It is only the thing that you have, and just utilize your time accordingly because it is the only thing which will lead you to your plan. All right? Okay, let's go. So आज की टॉपिक्स क्या क्या हैं? We'll discuss about the objectives of management, all right, and that includes organizational objectives, social, and then personal. Okay, so basically we'll start with that. What is objective? Objective जिसको हिंदी में उद्देश्य बोला जाता है. What is that? Okay, so basically this is like a normal definition. Like objective is what? A specific result that a person or system aims to achieve within a time frame and with available resources, जिसको हम बोलते हैं, which we have learned in the last lecture, effectiveness and efficiency. Okay, so see, abhi you got the meaning of objective. As we all know, we all have different objectives, right? So basically एक कोई भी किसी भी टास्क को कंप्लीट करना एक टाइम फ्रेमवर्क में उस रिजल्ट को पहले ही डिसाइड कर लेना इज द ऑब्जेक्टिव. ओके, ऑलराइट. सो in general, objectives are more specific and easier to measure than goals. Okay, they are different. Somehow there is difference between goals and objectives. So objectives जो होते हैं वो ज्यादा specific होते हैं और बहुत easy होते हैं to measure. Okay, and these are like a basic tools, okay, that underlie all planning and strategic activities. हर तरह की strategic activity हो, कोई तरह की planning हो, it will, you know, objective will be the basic tool for that. All right, so what is objective? It is like a common aim to achieve within a time frame and with available resources. Okay, all right. So there is this definition, as I have said in the previous lecture. You must have at least one or two definition of some specific authors. Okay, it will give a very good impact on your question, on your answer. Whatever it has been asked regarding objectives of management, either if it is of like 15 marks question, you have to give like a proper definition or a specified definition. It will give a very good impact. So I have written this. It is not in your book, so you can write तुम्हारी बुक में साइड में, या फिर you can make a short note on this chapter so that तुम इसको साथ में add on कर सको. So just do that because it is not in your book. Okay. So MC फार्लन ने ये describe किया है. बहुत छोटी सी definition है. It's very easy to learn also. That objective are the goals. See, goals are and objectives are different. Objective includes goals, aims और purposes. अभी अगर आपको उसको याद रखना है तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि इन जनरल ऑब्जेक्टिव्स के सिनोनिम्स क्या क्या हैं. जो सिनोनिम है उसके इन जनरल लैंग्वेज, नॉट इन द मैनेजमेंट टर्म्स, उन्हीं को आप इस डेफिनेशन में डालना है. लाइक गोल्स, एम्स, पर्पस, ये सारे सॉर्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स कहे जाते हैं. ठीक है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस एक्टिविटी, व्हाट इज योर एम, व्हाट इज योर गोल, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव. These are like sort of synonyms, okay, in general language. So you can include that. You can, मतलब इस तरीके से you just know how to learn, how to remind the specific terms. Okay, so objective are the goals, aims or purposes, okay, that organization which wish to achieve over varying periods of time. That is very simple because organization जो है वो हर specific अलग अलग time में they want to achieve some things. So it is specified, okay, that whatever they want to achieve is the objective. See, you have to learn this definition. ठीक है, all right. See, अभी objectives किस चीज में help करते हैं, we'll look towards that. It is also not in your book, but it is very important for the concept. Okay, that is why I have mentioned here, and you have to go through this. If you want, you can write also because it is not in your book. Okay. सो ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्लानिंग में हेल्प नहीं करते हैं. किसी चीज को प्लान करने के लिए तो हेल्प करता ही है, बट नॉट ओनली दिस. आई हैव टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर ऑल्सो कि ये 5 टर्म्स तो आप याद कर ही लीजिए बिकॉज इट विल बी वेरी हेल्पफुल एंड इट विल बी देयर इन एवरी कंसेप्ट. ऑलराइट, सो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? प्लानिंग, इट हेल्प्स इन प्लानिंग, organizing, directing and controlling.
Okay, so that is there. Just a second. Okay, so then see, pehla wala, I hope you all will get it. It's not, it doesn't help in planning only. It helps in organizing, directing, and controlling. Okay, then clear cut objectives help in proper decision making. See, these are the terms which are directly related to management. Okay, in management you have to take good decisions, and decision making पे एक लंबा चौड़ा चैप्टर भी है जो we will learn later. तो ये सारे टर्म्स आपने याद रखने ही हैं, और ये सब टर्म्स जो है वो ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है. ओके, सो यू फॉर यू, मतलब दैट इज वेरी कॉमन दैट फॉर अचीविंग बेटर रिजल्ट्स यू हैव टू हैव अ वेरी प्रॉपर डिसीजन मेकिंग, एंड डिसीजन मेकिंग कम्स व्हेन यू हैव क्लियर कट ऑब्जेक्टिव्स. सी, जब मुझे पता होगा कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मुझे 12th क्लास में हाईएस्ट स्कोर, ये फिलहाल आप लोगों को तो यही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि अभी आप लोगों को हाईएस्ट स्कोर्स गेन करने हैं. तो उसके लिए जब ऑब्जेक्टिव आपका सेट होगा कि आपको 12th में अच्छे स्कोर्स लाने हैं, 95 प्लस लाने हैं, देन यू विल डिसाइड कि अभी आगे क्या प्रोसीजर करना है, एंड इन टर्म्स ऑफ दैट यू विल टेक योर डिसीजन मेकिंग, राइट? दैट इज द थिंग. ओके, नेक्स्ट, ये दोनों पॉइंट्स हो गए. ओके, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी सपोर्टेड बाय सब ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्वियसली, सी, सब ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? जो ऑब्जेक्टिव से ही रिलेटेड होते हैं लेकिन वो बाइफरकेटेड होते हैं. ओके, तो दैट शुड बी सपोर्टेड बाय सब ऑब्जेक्टिव्स. लाइक आपने प्लान कर लिया कि आपने सुबह उठकर 5 बजे उठकर पढ़ाई करनी है. ओके, 5 से 8, तो आपका ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि आपने हाईएस्ट स्कोर गेन करना है. उसके लिए यू हैव डिसाइडेड 5 बजे उठने का. 5 बजे आपको उठना है, दैट इज योर सब ऑब्जेक्टिव which leads to your main objective. Okay, that is the thing. Okay, the objectives have hierarchy and a network, obviously. See, abhi management की बात कर रहे हैं, top management, middle management, lower management, so these are like hierarchies. Okay, so that is there. All right, next, objectives of management, which is the main topic of today. So ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, that is very very clear. Organization objectives, social objectives, and personal objectives. Okay, we'll do one by one. Okay, let's go. Organization objectives क्या है? So इस वर्ड से आप एक बार एनालाइज करके देखना 1 मिनट कि आपको क्या समझ में आ रहा है. ऑब्जेक्टिव का मतलब मैंने समझा दिया, ऑब्जेक्टिव की इंपॉर्टेंस, हाउ डज इट हेल्प, आई हैव टोल्ड यू बिफोर. अभी इस वर्ड से जो समझ में आ रहा है, अगर आप वो लिखने बैठ जाएंगे आंसर में भी, दैट वुड बी रॉन्ग. सी, ओके, दैट इज व्हाई यू नीड टू राइट in a conceptual approach. You need to understand the concept. Okay, so क्या है organization approach? Sorry, organization objectives. Okay, management is responsible for setting and achieving objectives for the organization. That is for sure. अभी management में तुमने जो जो ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, मैनेजमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होगा किसी भी कंपनी का. जो मैनेजर होगा या जो मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट पे होगा, जो सीईओ होंगे, दे विल डिसाइड एंड दे विल सेट सम ऑब्जेक्टिव्स फॉर अदर्स टू अचीव दैट इन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर. ओके, सो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? जो मैनेजमेंट डिसाइड करता है और वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है उनको सेट करने का और अचीव करने का भी. ओके, जैसे कि achieve a variety of objects in all areas considering the interest of all stakeholders including shareholders, employees, customers and the government. Okay, organizational objectives जो होते हैं वो बहुत वास्ट होते हैं. they are like in different dimensions. हर तरह के decisions हमें लेने पड़ते हैं, और साथ ही it is not about the organization and management. It is about the interest of stakeholders. ठीक है, साथ में इंक्लूडिंग शेयर होल्डर्स. जो शेयर होल्डर्स हैं उनका भी इंटरेस्ट होना चाहिए, एम्प्लॉयज का इंटरेस्ट होना चाहिए, कस्टमर्स को हम सेटिस्फाई कर पा रहे हैं नहीं, गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस को हम समझ पा रहे हैं नहीं, उनकी पॉलिसीज को हम नेग्लेक्ट तो नहीं कर रहे हैं, या यू नो we should not be in any sort of legal fault. इसका ध्यान रखना पड़ता है हर ऑब्जेक्टिव को सेट करने के बाद में. इनके इतने सारे डायमेंशंस हो सकते हैं और बहुत सारे डायमेंशंस हो सकते हैं by setting the objective. Okay, so ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना ऑर्गेनाइजेशनल इसलिए है because it considers these things which I just have told you. Okay,
अभी नेक्स्ट, अभी रिसोर्सेज की बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव रखने के लिए हमें कौन कौन से रिसोर्सेज की जरूरत होती है. ओके, I think that it is not gonna bore you, because this is the conceptual things we have to understand these, and then we'll go with our sort of examples which will make you feel fun. Okay, so first please focus on this thing. Okay, then we will go to our sort of examples. Okay, so the main objective of any organization should be to utilize human and material resources. ठीक है, सबसे पहले सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव तो ऑर्गेनाइजेशन का यही होता है. ओके, कि आप कैसे अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्सेज को, लेबरर्स को, आपके एम्प्लॉइज को, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना. दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन. ओके, रिसोर्सेज में मटेरियल रिसोर्सेज आते हैं, जो कि जैसे कि एक तो मैनमेड रिसोर्सेज हो गया, दैट इज लाइक ह्यूमन लिबरर्स, वे मतलब जो भी एम्प्लॉइज हैं वो सब कोई, और मटेरियल रिसोर्सेज जो हमारे पास में मटेरियल है वो वेस्ट ना हो, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, उनको अच्छी तरह से यूज किया जाए. दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव. ओके, सी this I have explained. मटेरियल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना, ऐसा पॉसिबल एडवांटेज निकालना उनका, सो दैट वो बिजनेस का जो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मतलब नाम से समझ में आ रहा है, जो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा बजट है, जो हमारा कॉस्ट एनालिसिस है, वो एकदम अच्छे से फुलफिल हो पाए. ओके, सो अभी अगर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को बिजनेस के अपन एक्सप्लेन करना चाहें तो व्हाट इज दैट? दिस इज लाइक सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ. ओके, अब ये तीन टर्म्स हैं, विल डिस्कस इट सेपरेटली. सो अभी रिसोर्सेज का मतलब आई थिंक आपको समझ में आ गया है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स का भी समझ में आ गया है. ऑलराइट, सो नहीं आया है तो यू कैन राइट एनी डाउट इन द कमेंट सेक्शन राइट नाउ. ओके, otherwise I think that it is clear, pretty clear. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर सर्वाइवल. सर्वाइवल का मतलब जैसा कि आपको पता है, सर्वाइवल का मतलब जो होता है एग्जैक्टली वही मतलब है बिजनेस मैनेजमेंट के टर्म्स में भी. सो बेसिक ऑब्जेक्टिव किसी भी बिजनेस का क्या होता है कि सर्वाइव कर जाओ. ठीक है, मार्केट में टिक जाओ. अगर नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज में और बेसिक लैंग्वेज में बात करें तो टिकना इज द बेसिक थिंग, कि आप मार्केट में टिके रहे विदाउट एटलीस्ट नॉट गेटिंग लॉस, नॉट इन प्रॉफिट, बट सर्वाइव करने का मतलब होता है if you're not gaining profit पर तुम्हारे कॉस्ट से ऊपर ना हो जाए. that is the survival thing in the management term. Okay, so management must try to ensure the survival of the organization. That is pretty clear. Okay, in order to survive, an organization must earn enough revenues to cover cost. जैसे कि अभी मैंने बोला कि it's not about सर्वाइवल का मतलब यहाँ प्रॉफिट तो नहीं है, यहाँ बस इतना मतलब है कि आप अपनी कॉस्ट कवर कर लें, इतना रेवेन्यू आ जाए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कि आपकी कॉस्ट कवर हो जाए और आप मार्केट में टिके रहें. ओके, दिस इज द बेसिक मीनिंग. ओके, सो जैसे कि मेरा कोई स्टार्टअप है, ऑलराइट, और मैंने शुरू कर दिया है, मैंने ऑलरेडी अपनी कैपिटल लगा दी है, इन्वेस्ट कर दी है, उसके बाद में मेरे आउटपुट इतने स्ट्रॉन्ग तो होने ही चाहिए कि जितना मैंने पैसा लगाया है और हर महीने में जितना मैंने इन्वेस्ट किया था शुरुआत में, वो मुझे वापस आउटपुट मिल गए. ठीक है, दैट इज व्हाट सर्वाइवल इज. बहुत सारे स्टार्टअप्स, बहुत सारे मार्केट में बहुत सारी चीजें बंद हो जाती हैं, वो इसीलिए हो जाती है क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं. सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो उनकी ग्रोथ नहीं होगी. ओके, नाउ व्हाट इज प्रॉफिट? ओके, प्रॉफिट का मतलब सबको पता है, कॉस्ट के ऊपर जो हो जाए वो प्रॉफिट है. सो प्रॉफिट प्रोवाइड्स अ वाइटल इंसेंटिव for the continued successful operation of the enterprise. See, this is like profit की ये definition है. अगर इनके वर्ड को तोड़ मरोड़ के मैं बताऊं कि प्रॉफिट क्या है, तो जो आपकी कॉस्ट से ऊपर आ जाए प्रॉफिट. और प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रॉफिट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन. ओके, मतलब यू कैन टेक इट सेकेंडरी, बिकॉज if it is like नया कोई स्टार्टअप हो या कोई एंटरप्रेन्योर हो जो नया शुरू कर रहा है, तो इट विल बी लाइक सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, बिकॉज फर्स्ट होगा सर्वाइव करना, कि एटलीस्ट हम टिके तो रहे, विल एटलीस्ट बी ऑन द पाथ ऑफ ग्रोथ. सो वो प्राइमरी हो जाएगा. पर अगर कोई टिका है, मतलब स्टेबल बिजनेस है कोई, तो प्रॉफिट जो है वो सबसे
बिजनेस का दूसरा नाम ही प्रॉफिट है, कि आपने बिजनेस करना है क्योंकि आपने बहुत प्रॉफिट कमाना है। ओके, सो ये प्रॉफिट का सिंपल फंडा है, ठीक है। और अगर आप नॉर्मल बुक वाली बात करें, जो विच विल बोर यू, आई नो, बट वी हैव टू, बिकॉज कंसेप्चुअल अप्रोच के लिए हमें ये सब कुछ पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। लेकिन बीच बीच में मैं थोड़ा सा आपको अपने तरह के एग्जाम्पल्स देती रहूंगी, सो दैट आप जरा बोर ना होए, ठीक है, और लेक्चर पूरा अच्छे से देख लें। सो या, तो प्रॉफिट प्रोवाइड्स अ वाइटल इंसेंटिव, जैसे मैंने तुम्हें बता दिया, एंड प्रॉफिट इज एसेंशियल फॉर कवरिंग कॉस्ट एंड रिस्क ऑफ द बिजनेस। सी, बिजनेस इज ऑल्सो ऑल अबाउट रिस्क। हमने पैसा लगाना है पहले और फिर पैसा कमाना है। हर मोस्ट ऑफ द बिजनेस में ऐसा ही होता है। तो पैसा लगाना इज द बिगेस्ट रिस्क, ठीक है। उस रिस्क को कवर करना, जो कॉस्ट हमने लगाई है उसको कवर करना इज प्रॉफिट, ठीक है। अभी यू विल बी थिंकिंग दैट प्रॉफिट इतना बेसिक टर्म है, वाई इतना लंबा चौड़ा कुछ एक्सप्लेन करना। नो, इट इज अ बेसिक टर्म, आई नो, बट व्हेन इट कम्स टू राइट, मतलब in the form of words, in your answer copy, you will not get the words, trust me. You have to have these sort of words in your head, कि ओके वी कैन यूज, मतलब लाइक मैनेजमेंट की लैंग्वेज इतनी अच्छी होनी चाहिए आपके आंसर्स में कि वो एकदम सामने वाले को पढ़ के लगे कि आपने कुछ पढ़ा है। प्रॉफिट का मतलब 10th क्लास के बच्चे को भी पता होगा, 8th क्लास के बच्चे को भी पता होगा कि प्रॉफिट क्या होता है, बट आप में और उनमें डिफरेंस तब आएगा जब आप उसको अच्छी तरीके से लिख पाएंगे, ठीक है। सो ये सब कुछ सुनकर आपके दिमाग में बैठेगा, आपको वर्ड्स याद रहेंगे, एंड यू विल बी एबल टू राइट। ओके, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, ओके। अदरवाइज प्रॉफिट क्या है सबको पता है, हम आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंसेप्ट, ओके, दैट इज व्हाई आई एम डूइंग। ऑल राइट, नाउ ग्रोथ, सर्वाइवल हो गया, प्रॉफिट हो गया, अभी ग्रोथ की बात करते हैं। दैट इज लाइक द टर्शियर थिंग जो प्रॉफिट की बात आती है। व्हाट इज ग्रोथ? So a business needs to add it to its prospects in the long run. For this, it is important for the business to grow. Okay, to remain in the industry, management must exploit fully the growth potential of the organization. See, ये तो हो गया लैंग्वेज जो मैंने पढ़ के सुना, जो मैंने लिखा है। अभी लेट मी एक्सप्लेन इट। बिजनेस को, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, सरवाइव करना होता है, ठीक है। सरवाइव करने के लिए टिके रहना होता है, और ग्रोथ के लिए, मोस्ट इम्पोर्टेंटली ग्रोथ के लिए और कंपटीशन में टिके रहने के लिए, इसी सर्वाइवल इज लाइक मार्केट में टिके रहने के लिए। पर ग्रोथ ऐसा है कि आप अपने कॉम्पिटिटर से कितना आगे जा रहे हैं, कितना पहले हैं, उसमें टिके रहने के लिए यू हैव टू हैव लाइक ह्यूज लेवल ऑफ ग्रोथ फॉर द लॉन्ग टर्म। ओके, बिजनेस कोई लगाता है तो कोई 5 साल के लिए, 10 साल के लिए लगाता नहीं है, तो उसके दिमाग में ये विजन होना चाहिए कि भाई इस तरीके से विल ग्रो, हम कंपटीशन में उतरेंगे, फिर हमारे कॉम्पिटिटर्स होंगे, विल कम्पीट विद देम एंड विल ग्रो लाइक दिस, ठीक है। तो कंपटीशन में, सॉरी, मैनेजमेंट में ग्रोथ कैसे लानी है वो मैनेजमेंट ही डिसाइड कर सकता है बिजनेस के लिए, ओके। तो ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस कैन बी मेजर्ड, बहुत तरीके से मेजर की जा सकती है। ग्रोथ सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि तुम्हारे पास पैसा आ रहा है तो ग्रोथ हो गई, या तुम बाजू वाले के साथ ज्यादा तुम्हारे पास शेयर है तो ग्रोथ हो गई, ऐसा नहीं होता है। ग्रोथ का मतलब बहुत तरीके से निकाला जा सकता है, और तुम्हारी बुक में 2 तरह के एक्सप्लेन किए हुए, और भी बहुत सारे होते हैं। यू विल बी लर्निंग इन फर्स्ट ईयर और मतलब इन द हायर क्लासेस, बट अभी फिलहाल के लिए 2 तरह की ग्रोथ एक्सप्लेन करी गई है बुक में, दैट आई एम गोना एक्सप्लेन, ओके। सो सेल्स वॉल्यूम, इंक्रीज इन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, ओके, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और द इंक्रीज इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा, बहुत सारी है वैसे तो। सो कैपिटल इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज हो गया, प्रोडक्ट्स में इंक्रीज कर दिया तुमने, तो वो ग्रोथ हो गई। एक्सपेंशन जिसको हम बोलते हैं, एक्सटेंड कर देना, बिजनेस को एक्सटेंड कर देना, दैट इज द ग्रोथ। See, we started with like 10 products, okay? By the time we were getting good outputs, good profit, and we survived in the market, then we go for 10 more products. So there will be 20 products for us, okay? Then अगर उसकी ग्रोथ अच्छी होती है, क्योंकि ज्यादा रिस्क तो आप ले नहीं सकते, एक क्वालिटेटिव कैलकुलेटिव रिस्क लेना होता है, राइट? सो उसके लिए धीरे धीरे अपना काम बढ़ाना,
एक्सपैंड करना, एक्सटेंड करना, दैट इज द ग्रोथ। ओके, तो वो बहुत अलग अलग तरीके से हो सकती है। ऑलराइट, अभी एग्जाम्पल देखते हैं। सी, अभी ये ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव का मतलब एज अ होल एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, ठीक है। सो अभी ये एक कंस्ट्रक्शन साइट है। सपोज करो आप या आपके फादर जो भी हैं वो डीलर हैं। ओके, सो अभी उनने ये घर बनवाना है, दिस इज द साइट, यहाँ पे उनने घर बनवाना है। ठीक है, उनके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, कौन कौन से रिसोर्सेज उनको सेटिस्फाई करने होंगे, वो पहला ऑब्जेक्टिव क्या सेट करेंगे, सब ऑब्जेक्टिव क्या सेट करेंगे, वी विल डिस्कस इन दिस पिक्चर ओनली। ओके, फर्स्ट ही विल डिसाइड कि ह्यूमन रिसोर्सेज कितने लगने हैं। ठीक है, पर डे पे जो काम करेंगे उनको कितना पैसा देना है, उनका यूटिलाइजेशन कैसे करना है। दूसरा, मशीन्स जो रिसोर्सेज में ही आएंगी, जो मशीन्स हैं वो कहाँ कहाँ यूज होनी है, कितने घंटे पर लेनी है, उनका कैसे यूटिलाइजेशन होना चाहिए, वो सब कुछ ये यहाँ देखा जाएगा। ठीक है, तो कौन देखेगा, जो ऑब्जेक्टिव खुद के लिए सेट करेगा वो देखेगा। तो डीलर जिन्होंने ये पूरा कंस्ट्रक्शन का पूरा जिम्मा लिया है, ही विल लुक आफ्टर टू दीज थिंग्स एंड देन ही विल डिसाइड कैसे कैसे क्या करना है। ओके, सो हियर आर द वर्कर्स। अभी इनको काम कैसे करवाना है, इनके इनके लिए इनका एम्प्लॉय लाइक वर्क सेटिस्फैक्शन भी होना चाहिए इनको, इनके वर्किंग आवर्स किस तरह से होने चाहिए, उन उन हिसाब से उनको कितना पे करना चाहिए, ये सब कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में आएगा, जहाँ ये डिसाइड किया जाएगा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जहाँ ये डिसाइड किया जाएगा कि जब ये कंस्ट्रक्शन साइट बन जाए तो ये इस तरह की, ये कंस्ट्रक्शन साइट पे जो काम चल रहा है वो कंप्लीट हो जाए तो इस तरीके से होना चाहिए कि उस आगे के लिए वो एक ग्रोथ दिखाए कि दिस इज द स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड दिस कैन बी दिस कैन बी वर्क लाइक अ रेफरेंस कि ओके हमने इतना इतना काम कराया है, दिस इज वेरी गुड, सो दैट हमें और आगे काम मिले। दूसरा ये कि हम अपना प्रॉफिट कैसे निकाल पाए, कैसे चीज़ों को इस तरह से यूटिलाइज करें कि हम हमारा आउटपुट निकाल पाए और वो अच्छा भी हो, टाइम पीरियड में भी हो और दिए हुए रिसोर्सेज के साथ में भी हो। दैट इज द होल पिक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब घर तुम्हारे हिसाब से डिसाइड कर लो तुम्हें कौन सा चाहिए। ठीक है, लेकिन दिस इज द थिंग। ऑलराइट, सो हमारा ऑब्जेक्टिव जहाँ होता है फुलफिल इस घर के साथ में। ओके, दिस इज अ ब्यूटीफुल हाउस, आई नो। ऑलराइट, सो to get this beautiful house you have to start from very scratch with a head objective, then like sub objectives and different things. So that is the thing. Okay, he do not think like this that it is going very, this is just a objective of management, 3 topics हैं, आगे ऐसे फटाफट इतना लंबा नहीं लेना चाहिए। No, you trust me, you have to get the concepts and I really want कि आप during the lecture आपको कंसेप्ट समझ में आते जाए, आप दोबारा पढ़े तो आपको ऐसा लगे कि आपने एक बार याद कर लिया है ऑलरेडी। Okay, that is why I am just trying, just go through these lectures and just then go through your book, एक बार बस रीडिंग मार लीजिए, you will be like आपने सारा कुछ पढ़ रखा है, trust me। Okay, and be very patient। Okay, so अभी let's come to social objectives। हमने organization objectives कर लिए। social objectives का basic meaning अगर आपको कोई पूछे कि इससे क्या समझ आ रहा है, what will you say, what are the social objectives, मतलब क्या मीनिंग है इसका। देखिए, सोशल मतलब इज रिलेटेड टू सोसाइटी। ठीक है, और सोशल मतलब होता है सामाजिक, सोसाइटी मतलब होता है समाज। ठीक है, उनको ध्यान में रखते हुए जो ऑब्जेक्टिव सेट किए जाएंगे, दोज आर सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ये इसका हिंदी नॉर्मल हिंदी मीनिंग है। ठीक है, समाज को ध्यान में रखते हुए जो सामाजिक ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाएंगे, सोशल ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाएंगे, दैट इज सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट। ऑलराइट, अभी इनके क्या क्या तरीके से हो सकते हैं, क्या है क्या नहीं, वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। सो इट इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ बेनिफिट फॉर सोसाइटी, जैसे मैंने बताया सोसाइटी को मद्देनजर रखते हुए उनके बेनिफिट्स क्रिएट करने के लिए सोशल ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं, जिसमें सोसाइटी और इवन हर तरह का ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो पार्ट होता है इसका। ओके, सो ये कोई बिजनेस हो, नॉन बिजनेस हो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो,
हर किसी के सोशल ऑब्लिगेशन रहते हैं जिन्हें हमें फुलफिल करना जरूरी होता है. हम बियॉन्ड सी वी लिव इन सोसाइटी, वी हैव टू डू आवर बिजनेस इन सोसाइटी, तो वी हैव टू लुक आफ्टर दिस सोसाइटी. ओके, समझ आया? मतलब हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पर हमें हमारा बिजनेस भी इन सोशल लोगों के बीच में ही करना है, इन्हीं लोगों के बीच करना है, तो उनकी ज़रूरतें को हमें ध्यान रखना पड़ेगा और हर तरीका सोशल ऑब्लिगेशन हमें फॉलो करना पड़ेगा. सो दीज आर द सोशल ऑब्जेक्टिव. ओके ओके. अभी अगर और अच्छी तरीके से बताना हो कि व्हाट डज इट रिफर, तो क्या, to consistently creating economic value for various constituents of society. That includes using environmental friendly methods of production, giving employment opportunities, basic amenities like schools, creatures to employees, ये सब कुछ. सी, अभी इसको मैं एकदम बेसिक एग्जांपल समझाऊँ आपका, तो हमें इंसेंटिव्स मिलते हैं बहुत सारे. आपने देखे होंगे, अगर आपके घर में कोई भी प्राइवेट जॉब में है या गवर्नमेंट जॉब में है या कहीं पर भी है, तो अगर कोई बिजनेस सेक्टर में कहीं एम्प्लॉय लगा हुआ है, तो आपको पता होगा कि बहुत सारे इंटेंसिव्स मिल रहे होते हैं, जिसमें गवर्नमेंट वालों को जो होता है उनको तो बहुत सारे जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज मिल रही होती हैं, बच्चों की स्कूल की फैसिलिटी मिल रही होती है. ये सब कुछ एक सोशल ऑब्लिगेशन है हमारा, विच वी शुड फुलफिल. ओके, कोई बड़ा एमएनसी है या कोई वहां पे अगर आप एम्प्लॉय हैं, तो आपको जैसे अभी कोरोना चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम के लिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इतने मतलब हर चीज अपने एम्प्लॉयज को घर पे प्रोवाइड करवाई है. तो ये उनका एक सोशल ऑब्लिगेशन है. उनको दे कैन नॉट फोर्स देम कि नहीं आप आइए और काम ही करिए. इट इज नॉट अबाउट द गवर्नमेंट थिंग, इट इज अबाउट द सोशल थिंग कि भाई हम किसी को हार्म नहीं कर सकते हैं. सबकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वी हैव टू मेक द सोशल ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, उन ऑब्जेक्टिव्स को सोशल ऑब्जेक्टिव कहा जाता है. ठीक है, जैसे कि आपने कोई प्रोडक्शन करना है, मशीन यूज हो रही है, बहुत धुआं हो रहा है, बहुत फ्यूल यूज हो रहा है, उस कारण से हमारा एनवायरमेंट जो है वो अफेक्ट हो रहा है. तो वी हैव टू थिंक अबाउट दैट एंड वी हैव टू हैव द मिडिल पार्ट फॉर दैट कि ऐसा ना हो. दैट इज द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अस एज अ सिटीजन. ओके, सो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देना लोगों को. जैसे मैंने कुछ काम शुरू करा है, बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट है देश में, तो मेरी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाऊँ और एम्प्लॉयमेंट दे पाऊँ और इस तरीके से दे पाऊँ कि मैं कुछ सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर पाऊँ. तो बिजनेस इज मतलब बेसिक तरीके से मैं ये बोल सकती हूँ कि इट्स नॉट अबाउट अ सेल्फिश मूव, इट्स अबाउट हर किसी को साथ में लेके चलना. दैट इज द सोशल ऑब्जेक्टिव. ठीक है, ओके. अभी पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स से मुझे समझ में आ रहा है. इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स तुम्हारे मेरे तुम्हारे दूसरे फेलो वंस के और तुम अलग दूसरे स्टूडेंट्स के, सबके अलग हो सकते हैं. हर कोई 12th में पढ़ रहा है, लेकिन 12th में पढ़ने वाले की सबके अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होंगे, क्योंकि वो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स है. तो वो क्या क्या है, लेट्स नो. ओके, तो ऑर्गेनाइजेशंस आर मेड अप ऑफ पीपल. अपन को पता ही है ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ही यही है, ऑर्गेनाइज्ड. ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल, दैट इज व्हाट ऑर्गेनाइजेशन इज. तो वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, अलग अलग पर्सनालिटी होती है, अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग एक्सपीरियंस से आए होते हैं. और जस्ट बिकॉज उनके बैकग्राउंड और एक्सपीरियंसेस अलग अलग हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स भी बहुत अलग अलग होते हैं. ठीक है, जिसमें दे सी, जैसे कि we'll do with an example. जैसे कि मैं ये बोलूँ कि मैं इतनी कॉम्पिटिटिव हूँ. सी, दिस इज मी दैट ज्यादा ज्यादा दांत वाली. सो ये दिस इज मी. ओके, सो अभी मैं ऐसे बैकग्राउंड से आई हूँ जहाँ मैंने बहुत पैसा देखा है, मेरी फैमिली बहुत रिच है. आई एम नॉट लुकिंग फॉर द मनी, आई एम लुकिंग फॉर द ग्रोथ, for more experiences. Okay, but this curly बाल वाला लड़का, वो बहुत ही रूरल बैकग्राउंड से आता है, उसको अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी है. तो उसकी पर्सनैलिटी ऐसी डेवलप हो गई है कि उसको सिर्फ पैसे से मतलब है, सिर्फ प्रमोशन से मतलब है और सिर्फ अपनी सैलरी को की ग्रोथ में मतलब है. ओके, सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग. ये अंकल जो रिटायर होने वाला है, ऑलमोस्ट मतलब रिटायर हो ही गए हैं, इनने कुछ नहीं करना है,
मतलब इनमें अपनी अपनी बॉडी की जितनी कैपेसिटी है उतना काम करना है और खुद का दिन निकालना है बस। ही इज लाइक आई डोंट वांट टू गेट बोर्ड पूरा पूरा दिन, ठीक है। जैसे कि अभी आप सब लॉकडाउन में बोर हो गए होंगे, तो इसको इनको इनको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। तो अभी ये इनको बस काम करने के लिए काम करना है। ही इज नॉट लुकिंग फॉर इवन प्रमोशन, नॉट फॉर द अदर ग्रोथ। ही इज लाइक आई वांट टू वर्क, आई विल वर्क। दैट इज अ पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो कि वो खुद सेट कर रहा है अपने वर्क एक्सपीरियंस से, अपने बैकग्राउंड से, अपनी पर्सनालिटी से। ओके, और मैं तो अभी ये अलग अलग तरीके से वेराई होते हैं। जैसे कि मैंने बोला फाइनेंशियल नीड्स होती है किसी की। अभी जैसे आई एक्सप्लेन, बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल नीड्स होती हैं, तो दैट इंक्लूड्स लाइक कॉम्पिटिटिव सैलरीज एंड पर्क्स, कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमारा हमें ये इंसेंटिव चाहिए। और ऐसे कंपनी में बहुत सारे टारगेट्स होते हैं, जो टारगेट कंप्लीट करेगा दैट विल गेट द कमीशन एंड ऑल दिस थिंग्स। तो ऑर्गेनाइजेशन में हर कोई जो काम कर रहा होता है वो कभी भी सिमिलर नहीं हो सकता। देयर इज दिस लाइन दैट हाथों की पांचों उंगलियां सेम नहीं हो सकती, वैसे ही हर इंसान अलग अलग होता है। ओके, सो सोशल फाइनेंशियल नीड्स से हमने बात कर ली। नाउ कम टूवर्ड्स द सोशल नीड्स। सोशल नीड्स क्या है? पीयर रिकग्निशन, जैसे मैंने बताया, ठीक है। जैसे कि आपको रिकग्निशन मिल रहा है आपकी कंपनी में, दैट फलाना फलाना जो भी नाम है उनका, सपोज लेट्स टेक सुहासिनी फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट वाला। सुहासिनी वांट्स कि उसको मैनेजर की पोस्ट मिल जाए, उसको रिकग्निशन मिले, अप्रिसिएशन मिले उसके काम के लिए। दैट इज हर पर्सनल चॉइस, दैट इज हर पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है, टू कम इन लाइमलाइट, ठीक है। उसको पैसा वैसा इतना नहीं चाहिए। हाईएस्ट लेवल नीड्स होती है, वो क्या होती है? लेट्स सी, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि बिल्कुल इट इज ऑन द टॉप। यू आर नॉट लुकिंग फॉर लाइक फाइनेंशियल नीड और सोशल नीड। तुम्हें भाई चाहिए कि तुम्हारा डेवलपमेंट हो, तुम्हारी पर्सनैलिटी बस अच्छे से ग्रो हो। दैट इज द पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ये वाला पर्सनल ऑब्जेक्टिव आप लोगों में भी होना चाहिए फिलहाल, कि आप कैसे ग्रो करें, आप अपनी स्किल्स को कैसे डेवलप करें, कि आप एकदम जो आप करना चाहते हैं उसमें आपको मास्टरी मिल जाए, उसमें यू वर्क एक्सीलेंट just because of on the path of growth and development. Okay, so that is the thing। ये हाई लेवल की नीड्स हैं और ये अभी आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। सेट योर पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, एवरीवन इज डिफरेंट, डू नॉट इवन कंपेयर। सी, नॉट इवन टू योर सिबलिंग्स, इफ यू हैव बड़ा भाई छोटा बहन, बड़ी बहन छोटा भाई, whatever it is, if he is intelligent, he is not intelligent, if he is doing something else, do not just compare with anyone। Okay, be yourself and set your personal objectives। सी, मैनेजमेंट में बहुत चीजें हैं लर्न करने के लिए, तो आप उन्हें लर्न करिए, समझिए, और प्रैक्टिकल लाइफ में जितना उतारेंगे उतना आपको आपको बिजनेस मैनेजमेंट के पेपर में हेल्प करेगा, दूसरा आपकी लाइफ में भी हेल्प करेगा। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। ओके, लास्टली अभी एक मतलब एक फायर क्रैकर वाला एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये आपका ग्रुप समझ लीजिए, वेरी ब्यूटीफुल ग्रुप आई वुड से। ये शायद इतने बड़े आप लोग होंगे नहीं, तो जब आप कॉलेज में जाएंगे यू मस्ट बी हैविंग दीस सॉर्ट ऑफ ग्रुप्स, ठीक है, अ ब्यूटीफुल ग्रुप। एंड ये आपके प्रेयर ग्रुप वाले हैं, ठीक है। इनमें से बहुत सारे लोगों के अलग अलग गोल होंगे, बट इनमें से ये लड़की जो है, शी इज लाइक डिप्रेस्ड, she is just looking for like पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, not for fun, nothing। okay, that is the thing। so ये अलग है तुम सबसे, लेकिन तुम में से ही एक है। सबके अलग अलग ऑब्जेक्टिव है। इसका ऑब्जेक्टिव फिलहाल तो यही है कि वो कहते हैं ना, आग लगी हुई है कि मुझे कोई मजे नहीं करने, एक सेकंड वेस्ट नहीं करना, आई जस्ट वांट टू स्टडी। सी, दिस इज द ऐसा ऐसा वक्त आता है, हर किसी की लाइफ में आता है। आपकी लाइफ में अगर अभी तक नहीं आया है तो डोंट इवन थिंक कि कभी नहीं आएगा, ऐसा वक्त आएगा। ओके, तो ऐसा जब टाइम आएगा ना, देन यू विल बी थिंकिंग कि अभी आई डोंट नीड एनी सॉर्ट ऑफ फन, एंटरटेनमेंट, एनीथिंग, आई वांट टू वर्क, आई वांट टू स्टडी एंड स्टडी। So that is her personality, but yours is different। You can tell कि अरे this is life, we have to enjoy, we have to have some entertainment or something, this is the age, ये वो, we are not responsible for anything right now, so we have to have fun। okay, that is your perspective। पर सबका अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता है। तुम्हारा कॉलेज में आने का ऑब्जेक्टिव यही है कि हमें मजे करने हैं, इसका था कि नहीं मुझे पढ़ना है,
So that is a different thing. Okay. So we are done with personal objectives also. Now, practice questions. I know आपका ये थोड़ा सा मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब you must not be liking this part, this practice question, but trust me, it will help you very much. So do not even miss a single day. Okay, whenever you see lecture, just solve these questions, just write. Okay, and write in comment section whatever you feel, whatever you have doubt or anything, whatever you feel about the module, what can I be, can I change. You just need to give some student feedback also, please do that. Okay. And so first question is, explain organizational objective. So क्या है organizational objectives, वो आपने explain करने हैं. इसमें 3 पार्ट थे, ये 2 मार्क्स का ही है. तो आप पहले थोड़ी सी डेफिनेशन डाल दीजिएगा ऑब्जेक्टिव की, एंड देन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को 2 लाइन में या 3 लाइन में समझा दीजिएगा. दैट इज ओके. अगर 5 मार्क्स में आ जाता तो आप पहले ऑब्जेक्टिव की डेफिनेशन एक्सप्लेन करते, जो हमने अभी पढ़ी है. उसके बाद में आप एक ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव की 3-4 लाइन लिखते, व्हाट इज इट अबाउट. फिर आप एक चार्ट बनाते, जिस चार्ट में आप वो 3 चीजें लिख रहे होते, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ. ठीक है. एंड देन उस चार्ट में इफ यू वांट टू एक्सप्लेन, तो उसी चार्ट में एक्सप्लेन कर देते. सो आपका कंटेंट पेपर पे आ जाए पर ज्यादा वर्ड्स ना लगे, तो वो भरा भरा ना लगे. इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर, है ना. तो ऐसा कर सकते हैं आप. So it depends on marks. Then explain the objectives of management in detail. Very simple, sorted question. इसमें पूरी अभी ये क्लास जो है वो कवर हो जाती है. मैंने क्लास लंबी ली है because I wanted you to get every sort of concept, each and every concept. Now whenever you will write, you will get to know कहाँ क्या लिखना है, कहाँ क्या छोड़ना है. ठीक है. कहाँ वर्ड लिमिट जो होती है उसको एक्सीड नहीं करना है, और अच्छे से चार्ट के रूप में ऑब्जेक्टिव्स पहले बाइफरकेट करना. मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स और ऊपर मैनेजमेंट ऊपर लिखना, फिर सोशल, ऑर्गेनाइजेशन, सोशल एंड पर्सनल. देन ऑर्गेनाइजेशन के 3 पार्ट हैं वो लिखना. पर्सनल में आप क्या क्या लिख सकते हैं, कुछ कुछ पॉइंट्स में वो डाल दीजिएगा चार्ट में. देन कम नीचे टू एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट. फर्स्ट लिखना ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, देन एक्सप्लेन दैट इन 2-3 लाइन्स, एंड देन write in points about survival, growth and profit. Do like that. Okay, I trust me, this sort of presentation will get you very good marks in business studies. Okay. Okay, see you in the next lecture. I hope you are liking it, you are getting it. Be very disciplined, and I love to host you. Any doubt, anything you have in your mind, just write in the comment section, and later we'll discuss. Next topic is importance of management. Okay. Okay. Thank you.